much that formally for all you wonderful people in here. I will request you all to please stand up for a moment. Let's give a very, very warm welcome to a new range of Aries in the house. Everybody, let's hear it loud. एक बार जोरदार तालियां. And let's welcome the new member in the family, Aries. We welcome you with lots of full heart and souls. Rajiv ji, congratulations to you too. Thank you, thank you. Congratulations to everybody for this new brand, Aries. It's a Steelbird brand for professional series. Now I just tell you about this helmet. Girls, can I have the helmets, please? Girls, can you please have the helmets? Girls? No, please come here. It's better. And one more, please. Yes. You can come here. Okay. So, Aries. This is a Steelbird product series. Why? Okay, guys, everybody, it's very important. I just want to tell you what is Aries. The Steelbird Professional series of helmets are crafted specially for professional bikers. This helmet is very strong. It's produced by a different material and it is for style and professional people. Why I have chosen the name Aries? Like we have one name Adonis, that is also from the Greek god. So Aries, a name associated with the Greek god of war. Appropriate for a helmet, war for protection. So it is also from the Greek god. So that's why I choose the name Aries. Aries all helmets, as you know, we have office in Italy. So ये सारे helmets Italy में design हुए हैं. Italy is known for the helmets. पहला helmet जब वर्ल्ड में बना था तो वो भी Italy में बना था. Helmet is a technology product but also a designer product. So इसकी सारी R&D, development, graphics सब कुछ Italy में होता है. So this is all produced and all R&D by a professional team. इसका जो shell है वो normal helmet वाला shell नहीं है. This is a PC ABS blend shell. It is the most strongest material in the world which is available for the helmets and used to sell the helmets in America, which meets SNEL standards, DOT standards. इसके अंदर बहुत high density EPS use हुआ है. इसके visors सारे imported हैं, सारे chrome finish के visors हैं, कोई transparent visors नहीं है. And we have given a UV protection to these visors. And very shortly, we are also launching the photochromatic visors for this helmet, which nobody has launched in the world. Then you can see it has a system, which is a locking system for the visor. Nobody has this system in the world. We have done this. ताकि जब एक्सीडेंट हो तो वाइजर खुले नहीं, तो वो लॉक रहे, या हाई स्पीड पे अगर बाइक चला रहे हैं तो वाइजर ना खुले. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस हेलमेट इज कि जब
इसके अंदर जो रैचेट सिस्टम दिया, जब इंसान राइडर वाइजर को नीचे करेगा, इसका मैकेनिज्म वाइजर को पीछे खींच लेगा। आपने वाइजर नीचे किया, उसने वाइजर पीछे खींच लिया, और शेल के अंदर हवा और पानी बिल्कुल नहीं जा पाएगा। दिस इज द वेरी हाईटेक फीचर ऑफ दिस हेलमेट, कि इसके अंदर वाटर, बारिश हो रही है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। देन द नेक्स्ट इज, जो इसमें बकल्स यूज हुआ है, दैट इज अ स्टेनलेस स्टील बकल, द मेटल, इट्स अ यूरोपियन स्टैंडर्ड, एंड मेटल टू मेटल बॉन्डिंग। Straps are very high tech. It has a single push button system to lift the helmet, which is user friendly. All designed in Italy. The graphics are also designed in Italy. This is the new, again we are launching very soon. Then the most advanced technology जो हमने Outlast से collaboration करी है, इसमें जो इंटीरियर यूज हुए हैं, जो नासा यूज करती है, वो फैब्रिक इसके अंदर यूज हुआ है। We are using a NASA technology in this helmet. That is a special fabric used by the astronauts, जो अपने राइडिंग सूट्स, ग्लव्स, उसके अंदर ये फैब्रिक यूज करते हैं। दिस इज अ नासा पिक्चर, वी कैन यूज दिस पिक्चर ऑल्सो, वी कैन यूज नासा लोगो ऑल्सो। आपको इन सब हेलमेट्स के ऊपर नासा का लोगो मिलेगा, आउटलास्ट का लोगो मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैब्रिक यूज हुआ है, फेस चेंज टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। फेस चेंज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आप सर्दी से, बिकॉज एस्ट्रोनॉट एकदम ठंड से गर्म में आ रहे होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए होती है। एकदम चेंज से अगर आप गरम गरम फुलके को फ्रिज में रख देंगे तो पापड़ बन जाएगा। तो उन्होंने जो फैब्रिक पहने होते हैं, जैसे ही वो गर्म से सर्द में आएंगे, वो फैब्रिक हीट ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आप गर्म से सर्द में आ रहे हैं एकदम, तो आप ठंडे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फैब्रिक आपके अंदर हीट ट्रांसफर कर देगा। और अगर आप ठंड से गर्म में जा रहे हैं तो फैब्रिक हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। तो इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और इसके अंदर आपको स्वेटिंग नहीं होगी हेलमेट में। लोगों की आंखों में नमक आ रहा होता है, पसीना हो रहा होता है, यू विल हैव नो स्वेटिंग, बिकॉज फैब्रिक जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। देन वी हैव लॉट ऑफ डिजाइंस इन दिस हेलमेट, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स जो इटली में अपना बनाए गए हैं। नाउ वी आर लॉन्चिंग 2 सीरीज। वन इज द फ्लिप अप, दिस इज फॉर द रेसर्स who are a professional riders. The another helmets, can you turn around? Are a vintage helmets. Please, can you turn around? These are the leather finish helmets, and it's a denim helmet. आजकल हायाबूसा, हार्ले डेविसन, बुलेट, इन सब राइडर्स को बहुत डिजाइनर हेलमेट्स चाहिए. So that's why we have designed these helmets for those riders in leather finish and also in denim. So let's cheers to have a great success for Aries. Thank you guys, thank you. Malika, I have to perform for you too, but I cannot do that. No, I need a microphone. Thank you so much. Okay, so that was lovely having you here, and I think एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए. We have really achieved so much today in these few hours. Okay, इससे पहले कि we get to another entertainment level, another entertainment zone. मैं यहाँ जाना चाहती हूँ सीरियसली कि एक सवाल है मेरा, क्योंकि इतना इमोशनल ये माहौल है. आई वुड नॉट कॉल इट अ वेरी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ गोइंग ऑन. इतना इमोशनल यहाँ माहौल हो चुका है और इतनी सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, हु हैज़ एक्चुअली टच्ड हार्ट्स. तो मेरा एक और बड़ा इमोशनल सवाल है आप सबसे, जिसका मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे तहे दिल से सच्चा जवाब ही देंगे. सो माई क्वेश्चन टू एवरी पर्सन, सिंगल पर्सन, मे इट बी अ मैन, अ वुमन, मे इट बी अ किड हु इज़ राइट नाउ राइट हियर, आई नीड टू नो अ वेरी ट्रू आंसर. और मेरा सवाल यह है कि आप में से किस किस ने ज़िंदगी में कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, छत के ऊपर, छत के नीचे, बाजू में, इधर उधर प्यार, इश्क और मोहब्बत किया है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स. ये पीछे, ये इधर, ये वाले जो जोन है, ये हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? राजीव जी हाथ खड़ा करके नीचे कर, वो देखो. अच्छा, ओके. तो पीछे वालों, आपने कभी भी प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं की? कभी भी नहीं की? जस्ट रेज योर हैंड्स. कम ऑन, बी अ स्पॉट. झूठ नहीं बोलना है. सुभाष जी ने कभी भी झूठ नहीं बोला. नहीं बोला ना आपने?
तो आपके साथ वाले क्यों झूठ बोल रहे थे देर से? हाथ ही नहीं खड़ा किया किसी ने? बिकॉज मुझे पता चला था आपसे सब इंस्पायर्ड है. तो फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट लाई. हाँ जी राजेश जी, देयर यू गो. ओके, सो क्योंकि इतना यहाँ लोग घबरा रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ आधे से ज़्यादा जनता जो है वो शादीशुदा है और उनकी जो बीवियाँ कोनी पे हाथ रख के बैठी, हाँ बोलो, बोल के देखो. बट प्यार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किसी को ना हुई हो, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू ग्रो. आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट यू फॉल इन लव. आई थिंक यू राइज इन लव. हाँ हो जाता है. उनके सामने बैठ के कर रहे हो, क्या बात है. वो कोनी उन्होंने लगाई यहाँ पे, आई कैन सी दैट. ये तो थीसिस किताब लिखो एक और. प्यार पे राजीव जी किताब लिख रहे हैं अगली, कान्हा का प्यार. और यहाँ पर जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं और जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, आई थिंक आज मैं कुछ कहना चाहूँगी इस प्यार के नाम, फ्रॉम ऑल द मेन टू द वाइफ्स, कि वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत का सरे बाजार नहीं करते. वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत का सरे बाजार नहीं करते. हमें डर है कि कहीं वो रुसवा ना हो जाए. हेलो अंकल जी ऑन द फोन, आई एम टॉकिंग टू यू. उनके लिए हमें डर है कि कहीं वो रुसवा ना हो जाएं और वो समझते हैं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते. और अब तालियां सारी लेडीज ने बजाई हैं. ओके, सो इट्स टाइम वंस अगेन टू रॉक एंड रोल. प्यार के नाम एक और परफॉर्मेंस, एंड हियर वी बिगिन. ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया
जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मेरे सपनों का जैसे खत है हाय मेरी चाहत की जैसे लत है मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। आप सब बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए, धीरे धीरे हौले हौले इस पल से प्यार भी हो जाएगा। एक बार प्यार के नाम जोरदार ताली। Come on people in love.
प्यार के लिए बहुत उकसाना पड़ता है आप लोगों को। स्कूल में और कॉलेज में लगते काफ़ी सीधे साधे रहे होंगे आप। इंस्पायर्ड बाय सुभाष जी। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम जो बहुत ही करीब है, स्पेशली स्टील बर्ड के इस मोमेंट का। इट्स अ टाइम फॉर अवार्ड्स, और इसे मैं सिर्फ अवार्ड्स नहीं कहूँगी, आई वुड रादर कॉल इट अ ऑनर टू हैव दीज लवली पीपल आउट हियर हु इज़ एक्चुअली द स्टील बर्ड परिवार, जिसने आज इस मुकाम तक स्टील बर्ड को पहुँचने में बहुत मदद की है। आई थिंक आई शुड रादर कॉल देम द पार्टनर्स इन सक्सेस, एंड टू डू द ऑनर्स आई वुड रिक्वेस्ट सुभाष जी, Rajiv ji and Shailendra ji to please come and join me here onto the floor. ओके, तो प्यार के किस्सों की किताबें कान्हा जी की बुक में हैं, जो आपने मेरे रूम में भेज दी है, जो मैं ओके वही पढ़ूंगी। प्राइड एंड प्रेजुडिस कैंसिल हो गई है, मैंने कान्हा से कान्हा तक ही पढ़ना है अभी, और कुछ नहीं। आप प्यार के किस्सों की बात हो रही थी ना डैडी की, तो डैडी मम्मी को 6 महीने देखते रहे थे सिर्फ। तो ये किताब में इसका जिक्र है कि डैडी 6 महीने मम्मी का पीछा करते रहे थे, और वो आप खुद पढ़ लेना। तो डैडी के सारे किस्से इस किताब में हैं। मतलब ये थोड़े थोड़े हिंट दे रहे हैं टू अनवील द किस्से। एक दो बात बना लो, तब तक मैं बैक स्टेज से कंफर्म। क्यों? इट्स ओके, डीएसटी वाले आए नहीं ना। हाँ, तो वो उनको 1 घंटा लगेगा आने में, तो वी स्टार्ट विद देम। Okay, so it's a time to honor the partners of our success. And first and foremost, it's an award for the top distributor of India 2013 and 14. मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Everybody, पीछे वाले especially. I'm all here to welcome Mr. Rajesh Arora from Rajesh Auto Agency, New Delhi. जोरदार तालियां। He is the #1 dealer of India. Everybody, come on! Congratulations, राजेश जी। मैं पहले कहना चाहती हूँ, और I think let's give a very very huge round of applause. Come on. अब तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए इस मुकाम पे। राजेश जी को आई एम श्योर आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पर राजेश जी को मैं एक्चुअली राजेश जी बोलती नहीं हूँ, आज तक कभी नहीं बोला, राजेश भैया ही बोलती हूँ। तो भैया 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएंगे प्लीज़ मेरे पास। और मैं राजेश जी को तब से जानती हूँ जब मैं इतनी सी थी, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 6 साल पुरानी है। मैंने हील्स डाले हैं फ़िलहाल। मैं इजाज़त चाहूँगी 2 शब्द कह सकती हूँ इनके लिए, इफ़ इट्स ओके। नहीं, इनको नहीं, मुझे बोलना है, ये बहुत बोलते हैं, ही टॉक्स अ लॉट। इधर आ जाओ ना भैया, व्हाई यू सो शाय। मैंने इनके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा है, सीरियसली। और आई एम श्योर कि ये भी कहीं ना कहीं सुभाष जी आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलना, हर चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच से देखना, हर इंसान के दिल में उतर जाना, और 10 चीज़ें एक टाइम पे ऐसे कर देना विदाउट इवन हैविंग लिटिल स्ट्रेस ऑन हिज माइंड। आई थिंक ही इज़ सो ग्रेट, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ राइट हियर। एक बार ज़ोरदार तालियां फॉर हिम। और मेरे लिए ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट कि मैं आज होस्ट कर रही हूँ अवार्ड सेरेमनी फॉर हिम, एंड आई रियली वांट टू से समथिंग ट्रूली। वैसे मैंने को कहा था कि मैं आपके लिए बहुत खराब बोलने वाली स्टेज पे, सो ही वाज ऑन विद इट, इट्स ओके। बट भैया सीरियसली मैं एक चीज़ दिल से बोलना चाहती हूँ आपको, कि आप जहाँ भी जाते हैं बना लेते हैं जगह अपने लिए। आप जहाँ भी जाते हैं बना लेते हैं जगह अपने लिए। आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। दिस इज़ फॉर यू, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। हेलो,
वैसे ना बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार स्टेज पे बोलता हूँ, बहुत बार बोला है, लेकिन आज ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज वो ऐसा दिन है, कुछ हो रहा है, डर सा लग रहा है आप लोगों के सामने, बट लेकिन बोलूँगा, आज कहूँगा अपने दिल की बातों को। श्री सुभाष कपूर जी सामने खड़े हैं, साथ में राजीव जी हैं, शैलेंद्र जी भी हैं कंपनी से। मैं ऑटोमोबाइल्स ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करता हूँ और कई सालों से करोल बाग में एक बिजनेस करता था ऑटो पार्ट्स का। कभी मैंने हेलमेट डिग्गी का बिजनेस किया ही नहीं था। हेलमेट के बारे में तो इतना जानता था कि जब सपने होते थे कि हर लड़के के सपने होते हैं कि मैं बाइक खरीदूंगा, फिर एक अच्छे अच्छे हेलमेट्स देखता था, हेलमेट पहनूंगा, इतना जानता था बस। फिर धीरे धीरे ऑटो पार्ट्स का काम करते हुए उन्हीं दिनों फिर मैं इनके बारे में बात करूंगा। हम दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ कि मैं जब एसोसिएशन है हमारी मार्केट की, वहाँ पर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो कंपनी राजेश ऑटो एजेंसी है वहाँ की मेंबर है। तो उन दिनों कोई फंक्शन होना, कोई कार्यक्रम होना, जैसे दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन के मेले लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हैं, और भी कोई दिवाली मेला, कभी कुछ भी किसी तरह का कार्यक्रम होना, एक शख्सियत वहाँ पर आते थे। जब भी वो आते थे सबका दिल जीत के चले जाते थे। शायद इनको पता भी नहीं होगा ये बात, आज मैं दिल की एक बात बता रहा हूँ आपको सर, कि आप जब भी आते थे, जो भी आपके सामने आता था, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, और आप गले से ऐसे मिलते थे उसको गले लगा के। आप मुझसे भी कई बार मिले, मैं आपसे मिलता था और मिलते थे और चले जाते थे। मैं एक ही चीज़ सोचता था कि काश मैं इनसे कभी बात कर पाऊँ, काश मैं इनसे कभी कुछ कह पाऊँ। बट एक थोड़ा सा छोटा सा काम करता था, ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था, तो वो अंदर ही अंदर रह जाती थी बातें। उन्हीं दिनों इनको जब राम की उपाधि दी गई, एक लक्ष्मण की उपाधि दी गई थी। श्री रमेश कपूर जी सामने बैठे हैं। मैं इनसे सबसे पहले अगर स्टीलबर्ड फैमिली की बात करूं, सबसे पहले इनसे मिला और इनसे मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, काम की शुरुआत की थी। तो जब इनसे भी मिला, बहुत कुछ सीखने लगा, क्योंकि ये फैमिली ऐसी है जो बिलीव करती है कि खुद तो कंपनी को आगे बढ़ाना है, साथ में जो भी लोग जुड़ेंगे उनको भी आगे बढ़ाना है। ये इस कंपनी की खासियत है, इस फैमिली की खासियत है। जोरदार तालियां चाहूँगा इस बात के लिए। तो रमेश जी ने पहले दिन से हमेशा गाइड करना शुरू किया, गाइड भी करते थे। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ ज़रा, और मैं पहुंचा तो आप बैठे थे सर ऑफिस में, झंडे वाला ऑफिस में आप बैठे हुए थे, और उस चेयर पे बैठे थे जिस पे अक्सर रमेश जी बैठा करते थे, और रमेश जी साइड में खड़े थे, वही राम लक्ष्मण वाला पूरा। रमेश जी ने कहा राजेश तुझे इनके साथ काम करना है। और मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैंने हेलमेट बेचा नहीं है, डिग्गी बेची नहीं, पैनियर बॉक्स कुछ नहीं किया ऐसा आज तक। उन्होंने ये कहा तुझे काम करना है। मैंने कहा ठीक है सर। और अगले दिन मैं इनके पास ऑफिस में था, और उससे 2 या 3 दिन बाद 4 दिन बाद काम की भी शुरुआत हो गई। समझ ही नहीं आता था कि ये हेलमेट का काम मैं कर रहा हूँ, ऑटो पार्ट्स का काम करते करते। एक छोटी सी दुकान, 6x21 की दुकान मेरे पास, और मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने हेलमेट के बिजनेस में भेज दिया। खैर अब जब बिजनेस में भेजा तो साथ साथ जगह भी बनने लगी जगह भी बनने लगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई जगह काम करने के लिए। उन दिनों में ना